اس بندے مکان بڑا بنایا ہوا ہے اینو ہی اج لٹنے ہے اینو تے تالا لگا ہوا ہے اودو جانے ہیں پیچھے دی چڑھنے تے دوار دے کھڑکی جی ہے تے گئی چڑھنے اتنے میری لت گئی کوئی آ بھی نہ جائے اس بندے کا کچھ ہے کوئی بہن میری لات میں ٹٹ گئی بندہ ہی بھکا چور چھت میں گتی کونی تیرے پیر آئے گی ڈگا ہونا لات باں بنا کے تو باہر وینا کتنے تک نس کے گیا ہونا ہے بادشاہ کا اقبال بلند ہو بادشاہ کا اقبال بلند ہو بادشاہ کا ہمیشہ سایہ رعایا کے اوپر رہے گا آج دربار کی کارروائی شروع کی جائے کیا ہمارے راجیہ میں کوئی فریادی آیا ہے جی بادشاہ سلامت ایک فریادی آیا ہے اس فریادی کو حاضر کیا جائے جی بادشاہ سلامت السلام علیکم بادشاہ صاحب وعلیکم السلام کیا نام ہے تمہارا محمد چاند ویس محمد چاند عبید کیا مسئلہ ہے تمہارا بادشاہ صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نا کل راستے گیا جی چوری کرنا اچھا تم چوری کرنے کے لیے گئے ہاں جی بادشاہ صاحب میں دوار چڑھا لگا جی پھر کیا ہوا میں جی سوچا میں کہ میں چھت پاڑ کے بھی جیڑی شے میرے دل لگی میں چاہ آ جا سکتا تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا ہوا بادشاہ صاحب میں اتنے پیر رکھا تو میرے ڈائریکٹ ویچ بھاگ گیا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر چھت بالکل نہیں تھی تو تمہیں نظر نہیں آیا بادشاہ صاحب اتنے ترپیل سی اچھا اوپر ترپیل تھی اور تم نے ترپیل کے اوپر پاؤں رکھ دیا ہاں جی اور پھر تم نیچے گر گئے ہاں جی بادشاہ صاحب کوئی نقصان تمہارا ہوا ہاں جی بادشاہ صاحب میری لات ٹوٹ گئی آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی مال کے مکان نے آپ کو پکڑا نہیں بادشاہ صاحب اور تم وہاں سے بھاگ گئے ہاں جی مجھے انصاف چاہیے تم نے وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائی جی بادشاہ صاحب لیکن ہمیں آپ کے ساتھ پوری ہمدردی ہے تمہیں پورا انصاف ملے گا لیکن سب سے پہلے ہمیں مال کے مکان کی تلاش کرنا ہوگی دربان جی بادشاہ سلامت اپنی تمام تر فوج لگا دو کہ مال کے مکان جس کی وجہ سے اس کا اتنا نقصان ہوا ہے جو حکم بادشاہ سلامت اس کو ڈھونڈا جائے اور کل عدالت میں پیش کیا جائے جیسا حکم بادشاہ سلامت آج کی عدالت اور دربار کی کارروائی یہاں ختم کی جاتی ہے بادشاہ کا اقبال بلند ہو بادشاہ کا اقبال بلند ہو بادشاہ کا سایہ ہمیشہ رعایا کے اوپر رہے گا آج کے دربار کی کارروائی شروع کی جائے اور کل والے چور کو حاضر کیا جائے جی بادشاہ سلامت جیسا آپ کا حکم بادشاہ سلامت کل والا مجرم حاضر ہے آپ ہی کل والے چور ہیں جی بادشاہ صاحب
माल के मकान के बारे में कुछ पता चला? जी हुजूर। जाओ उन्हें लेके आओ। जैसा आपका हुक्म बादशाह सलामत। हजूर का इकबाल बुलंद हो, हजूर का इकबाल बुलंद हो। फरियादी, तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद बिलावल। मोहम्मद बिलावल, तुम्हारे घर में चोरी हुई थी। हाँ जी हजूर। आपको शायद इल्म नहीं कि जो चोर आपके घर में कूदा था उसकी एक टांग टूट गई है। उसका इल्जाम आप पर आया है। इस आदमी को पहचानते हो तुम? गौर से देखो, ये वही चोर है या नहीं? और कमीनिया तू है? तशद्दुद को खत्म किया जाए। ठीक है हजूर, ठीक है। हद अदब गुस्ताख, ये हमारा फैसला होना था कि हमने इसे कितनी सजा देनी है। अदालत आलिया इस नतीजे पर पहुंची है कि तुमने पैसे की बचत की और अपनी छत ना डलवा कर एक आम सी तिरपाल को इस्तेमाल किया। तो इसलिए इसके मुजरम तुम करार पाते हो। अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कहो। हजूर मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ और मैं छत नहीं डलवा सकता, इसलिए मैं तिरपाल डाली थी। कसूर मेरा नहीं, कसूर तिरपाल वाले का है। तिरपाल खरीदी थी आपने? हजूर मुझे नहीं पता था वो तिरपाल खराब होगी। दरबार, जी बादशाह सलामत। कल आपने अपनी तमाम फौज में से आला अफसरान को उस तिरपाल वाले को ढूंढने के लिए लगाना है। जैसा आपका हुक्म बादशाह और सलामत। कल की अदालत में वो तिरपाल वाला हाजिर करना है। जैसा आपका हुक्म बादशाह आज की अदालत यहाँ बर्खास्त होती है। इन दोनों को हमारे मेहमान खाने में रखा जाए, आज जिंदा में ना रखा जाए। फैसला होने तक ये हमारे दोनों मेहमान हैं। बादशाह का इकबाल बुलंद हो, बादशाह का इकबाल बुलंद हो। बादशाह का साया हमेशा राया के ऊपर रहेगा। आज की अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आज कोई फरियादी है या नहीं, या पिछले केस की सुनवाई है? जी हुजूर, पिछले केस की सुनवाई है। पिछले केस में मैंने एक माल के मकान को पकड़ा हुआ था। वो किधर है? उसको लेके आओ। माल के मकान को हाजिर करो। जो हुक्म बादशाह सलामत। हजूर का इकबाल बुलंद हो, हजूर का इकबाल बुलंद हो। तुम वही कल वाले माल के मकान हो ना? हाँ जी हजूर। तो रात कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ आपको? नहीं हजूर। खाना वाना अच्छा मिला आपको? हाँ जी हजूर, बेहतरीन। तो मैंने कहा था कि उसको बुलाओ। वो क्या उसका तुमने बोला? तिरपाल वाले का। तिरपाल वाले को हाजिर करो। जी हुजूर। हजूर तिरपाल वाला मुजरिम हाजिर है। सलाम हो बादशाह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो वो तिरपाल वाले तुम हो? जी हजूर। तुम्हारी दुकान से एक तिरपाल खरीदी गई थी, शायद तुम्हें याद हो। जी हजूर। लेकिन वो तुम्हारी तिरपाल नाकस है। मेरे राज्य के अंदर इतना नाकस काम तुम करते हो। लेकिन वो तिरपाल इकबाल के मकान ने खरीदी थी, तुमसे खरीदी थी ना? जी। इस बंदे को तुम पहचानते हो? वो तू जाली नोट लेके आया है? क्या जी जाए? हजूर। गुस्ताख, हद अदब। इसकी सजा का फैसला हमने करना था जो तुमने कर दिया। लेकिन इसने कहा कि तुमने वो तिरपाल गलत बनाई थी। तुमने
वो तिरपाल गलत क्यों बनाए, इसलिए इसके मुजरम तुम ठहरते हो, लेकिन हम तुम्हें पूरा बोलने का मौका देंगे। अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। हजूर कसूर मेरा नहीं है, कसूर है कबूतरा वाले का। वो लाई खड़ा जी बाजी, मेरा ध्यान उदे हो गया जी बाजी हल्ले ते तरपैल कच्ची रह गई। दसो मेरा कसूर है, दसो। उस दिन मैं रोकदा रहा भी ये ना लो ऐसा के चंगी माइयो ला जावनी। दरबार जी बादशाह सलामत। तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे कसूर कबूतरों वालों का बनता है। मुझे लगता है कि कबूतरों वालों ने गड़बड़ की है। जी हुजूर। इनको मेहमान खाने में रखा जाए, जैसा आपका हुक्म। इनकी मुकम्मल खातिरदारी की जाए, जो हुक्म। और अपने अच्छे अफसरान से बोलो कि वो जाकर उस कबूतरों वालों को हाजिर करें। जी। कल के लिए आज की अदालत बर्खास्त की जाती है। बादशाह का इकबाल बुलंद हो, बादशाह का इकबाल बुलंद हो। बादशाह का साया, बादशाह की अनायात रियाया के ऊपर रहेंगी। हाँ बोलो, मैंने तुम्हें कल एक काम कहा था। जी हुजूर। कौन सा था भला? कबूतर वाले का। तो कबूतर वाले से पहले उस तरपैल वाले को हाजिर किया जाए। जी हुजूर, जो हुक्म। हुजूर, बादशाह का इकबाल बुलंद हाजिर हो। है। तुम तरपैल वाले हो ना? जी हजूर। रात कोई मसला मसाइल नहीं हजूर। खाने पीने में? नहीं हजूर। अब कबूतर वाले को हाजिर किया जाए। जो आपका हुक्म बादशाह। बादशाह सलामत। कबूतर वाला हाँ मुजरिम हाजिर है। बादशाह का इकबाल बुलंद हो, बादशाह का इकबाल बुलंद हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम, मैंने सुना है कि तुम कबूतरों की बाजी लगाते हो, जी बादशाह सलामत। जिसकी वजह से हमारी रियाया के कुछ कारीगर उनकी तवज्जो बढ़ जाती है। बादशाह सलामत, मैं तो अपने काम में मसरूफ़ होता हूँ, वो अपने काम में रहे, मेरे कबूतरों की बाजी की तरफ ना देखें। इस बंदे को तुम जानते हो? तुम, तुम्हारी वजह से मेरे 50,000 की बाजी खराब होगी। तशद्दुद को खत्म किया जाए, जी बादशाह आवाज सलामत। को नीचा किया जाए। हद अदब गुस्ताख, बादशाह सलामत तुम्हारे सामने खड़े हैं। जी बादशाह सलामत, गुस्ताखी तुम माफ हो। दरबार में खड़े हो, दरबार की तौहीन कर रहे हो। माफ़ी का तलबगार हूँ बादशाह सलामत। तो आपको पूरी कहानी का शायद इल्म नहीं। एक आदमी की पहले टांग टूटी है क्योंकि उस माल के मकान ने अपनी छत के ऊपर एक तिरपाल बहुत निकम्मी सी डाली थी। वो तिरपाल इस आदमी ने बनाई थी, और उस तिरपाल निकम्मी इसलिए बनाई थी कि तुम्हारी बाजी चल रही थी। बाजी की वजह से अब तुम ये कहते हो कि मेरे 50,000 ज़ाया हो गए, लेकिन हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि तुम अगर 50,000 की बाजी लगा सकते हो तो तुम्हारे पास बहुत माल है। बादशाह, तमाम बोलने का तुम्हें पूरा हक दिया जाएगा, और जब हम कहेंगे तमाम तर कार्रवाई सुनने के बाद आपको बोलने का मौका दिया जाता है। आप अपनी सिपाही में कुछ कहना चाहते हैं तो बोलो। बादशाह सलामत, मैंने अपनी बाजी लगाई और ये आदमी जो है मेरी बाजी के कबूतरों को नीचे से दाना डाल के अपनी तरफ बुलाता था, इस वजह से मैं 50,000 की बाजी हार गया हूँ। कुछ भी हो, जब 50,000 का नाम आ गया तो तुम अमीर आदमी लगते हो। इसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, क्योंकि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि तमाम तर इस जुर्म का जिम्मेदार सिर्फ ये कबूतर वाला है। इसको फांसी पे लटकाया जाए, इसको ले जाओ। जो हुक्म बादशाह सलामत। आप भी चले जाएं। जी हजूर।
बादशाह सलामत। आगे आके बात करो, क्या बात है? वो जो हमारा फंदा है उससे आदमी ऊंचा है। उस आदमी का कद ज्यादा है। जी बादशाह सलामत। ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने भी बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं। तुम जानते हो दरबान कि हम कोई भी फैसला ऐसे नहीं करते। जी बादशाह सलामत। हम चाहते हैं कि फैसले कानून के मुताबिक और बिल्कुल इंसाफ पे मबनी हो। जाओ मेरी राज्य के अंदर एक ऐसे बंदे को ढूंढ के लाओ जो फंदे के बिल्कुल बराबर हो और उसे लटका दो। जो हुक्म बादशाह सलामत। जाओ। इंसाफ करना, सल्तनत चलाना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। बादशाह सलामत, आदमी मिल गया है जिसका कद बिल्कुल फंदे के मुताबिक हो। कबूतर वाले को भी लेके आओ ताकि मवाजना किया जाए कि कद में फर्क है या तुम इस आदमी को वैसे ही लटकाना चाहते हो। जो हुक्म बादशाह सलामत। लेके आओ। आपका कद मुझे मुनासिब नजर आता है। बादशाह रोला के मैनू क्यों पकड़ लेंदे अभी कबूतर वाला आ जाता है। इसके कद का मुआवजा किया जाए। बादशाह के इसके कमाल बुलंद कद हो। का मुआवजा किया जाए। सीधे होकर खड़े हो, सीधे हो। हाँ, अब मुझे पता चला कि फंदा इसके गले में सही आ सकता है। हम तुम्हें फांसी पे लटकाना चाहते हैं। बादशाह मेरा कसूर की है, मैनू क्यों फांसी लटकाना चाहना है? तुम्हारा कद फंदे के बराबर है। अगर पूरी बात सुनना चाहते हो तो हम बादशाह मसला की है, मैनू को दस तो सही। मसला ये है, एक चोर एक आदमी के घर में कूदा। उसने नया नया घर बनाया था। उसने सोचा उसके पास पैसा होगा, लेकिन उस बेचारे के पास पैसा नहीं था। ऊपर चढ़ा, ऊपर जब उसने पाँव रखा उसकी छत एक तरपाल की थी, वो कच्ची थे। वो नीचे गिर गया, उसकी टांग टूट गई। हमारा पहला इंसाफ ये कि हमने माल के मकान को बुलाया। ठीक हो गया। माल के मकान को बुलाने के बाद जब उसकी बात सुनी गई, उसने मुझे कहा कि जनाब मेरा कसूर नहीं है, ये तरपैल वाले का कसूर है। हम इंसाफ पे मबनी तरपैल वाले को भी बुलाया। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे ही इंसाफ कर दें। ठीक हो। नहीं, हम ऐसे इंसाफ नहीं करते। हम इंसाफ का तराजू ऐसे रखते हैं। तरपैल वाले को बुलाया गया। उसने कहा कि हजूर, तरपैल में गुस्ताखी इसलिए हुई क्योंकि साथ ही कबूतर वाले ने बाजी लगाई हुई थी 50,000 की। जब हमने कबूतर वाले को बुलाया, वो मुजरम ठहराया गया। वाकई उसने बाजी लगाई हुई थी। इंसाफ पे मबनी हमने फैसला किया कि उसको हमने सूली पे लटका देना था, लेकिन बदकिस्मती से उसका कद जो था वो लंबा रह गया, तुमसे थोड़ा ऊंचा था। फिर वो फंदा जो है हमने चेक किया, उसकी पड़ताल की और आपको हमने ढूंढा। वो फंदा आपके गले के बिल्कुल बराबर है। ये तुम्हारा कसूर है कि तुम्हारा कद। बादशाह मेरी भी सुन ला, एवें फंदे दित्ती जाण दे लोगां नूं। जेड़ा कबूतरां वाला लै गया उहदा कद उच्चा है, उसका कद बड़ा है। तो टोया काट तो उहदा कद पूरा कर तो उहनूं फांसी चढ़ा दे। मेरा अंदर की कसूर है बादशाह? कुर्बान, आप जी बड़े बादशाह साहब। अच्छे इंसान को लेके आए हैं, बड़े समझदार इंसान को लेके आए हैं। इन्हें इनामो इकराम दिया जाए और हम दोबारा ये फैसला करते हैं कि उस कबूतर वाले के पाँव के नीचे से थोड़ा सा खड्डा खोद दिया जाए जो हुक्म बादशाह और उसको सलामत। लटका दिया जाए। जो हुक्म बादशाह जाओ, सलामत। इसको इनामो इकराम पहले दे के फारे करके आओ और इसको ले जाओ जल्दी। इनको जो फारे हुक्म करो। बादशाह सलामत। कबूतर वाले हमारे राज्य के अंदर बादशाह ये सलामत दे इंसाफ दिया है। इनाम। इनाम दे दिया, इसको भी इनाम दो, इसको लटका दो। जाओ। जो हुक्म बादशाह सलामत।
इंसाफ के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ना पड़ती हैं। मुल्क चलाने के लिए ऐसे ही नहीं होते। बादशाह सलामत, उसकी कोई ख्वाहिश पूछ ली जाए। उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है और तुम्हें भी सारी जिंदगी दरबानी करते हुए गुजर गई। बादशाह के आगे से गुजरते हो, बादशाह के आगे से गुजरते हो, तुम्हें जिंदगी हुजूर गुस्ताखी माफ, अद्यादब गुस्ताख। गुस्ताखी माफ। उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं सुनी जाएगी। जल्दी फांसी दी जाए, क्या रट लगाई उसने, उसको बुला के लाओ। जी हुजूर। न जाने क्यों इतनी देर कर रहे हैं। मुझे जल्दी फांसी दी जाए, मुझे जल्दी फांसी दी जाए, मुझे जल्दी फांसी दी जाए। कबूतर वाले, तुमने इतनी रट क्यों लगाई हुई है फांसी की? तुम्हें इतना शौक है क्या? क्योंकि बादशाह सलामत, मैंने देखा है आसमान की तरफ के परियों का जो बादशाह वो मर गया है। मुझे फांसी दे जल्दी से, मैं मर जाऊँ और मैं परियों का बादशाह बन जाऊँगा। परियों का बादशाह मर गया है? जी बादशाह सलामत। दुनिया में भी हम बादशाह, आखिरत और दुनिया की बादशाहत को छोड़कर क्यों ना परियों की बादशाहत को? दरबार, जो इसको यहाँ से ले जाया जाए जो हुक्म बादशाह सलामत। और साथ ही जल्लाद को लाया जाए। जल्लाद हाजिर हो। इसको ले जाओ यहाँ से। जल्लाद को हाजिर किया जाए। जल्लाद हाजिर है बादशाह सलामत। हाँ, आपको यही आना चाहिए था। ये बादशाह, आपने हमें याद किया। आप इंतजार कीजिएगा। हम आज इस दुनिया में अपना आखिरी लम्हात गुजारने के लिए यहाँ खड़े हैं। बादशाह सलामत, ये क्या कह रहे हैं आप? दरबान, मैं बताता हूँ। जल्लाद, तुम थोड़ा सा इंतजार करो। जी बादशाह सलामत। क्योंकि इस दुनिया के अंदर हमने, हमारे पुरखों ने, बड़े हमारे आबा व अजदाद ने बहुत हुकूमत की है। बिल्कुल बिल्कुल बादशाह सलामत। लेकिन जो आने वाले चश्मो चराग हैं उनको थोड़ा बदलना चाहिए। अभी मुझे पता चला है कि परियों का बादशाह मर गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता सारी जिंदगी हम दुनिया पे बादशाही करें, हुक्मरानी करें। दरबान, ये हमारी मेरी कुछ चीजें हैं, ये आने वाले जो हुक्म बादशाह सलामत। हमें ऊपर से कपड़े मिलेंगे परियों के बादशाह बनकर। ये ले ले, ये परियों के बादशाह जब हम बन जाएंगे, जो है, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। हम परियों के ही बादशाह बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया में हम बादशाह करते हम थक गए हैं। ये भी ले लो। जल्लाद, मुझे ये भी ले लो। जल्लाद, मुझे ले चलो फांसी के फंदे पर। फांसी के फंदे